एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल में एनर्जी की बात चालू थी, राइट? थैंक यू सोहम फॉर टेलिंग मी दैट. ओके, I have doubt in photoelectric. Yeah, you can ask me your doubt. Can you type it? My screen is very small. Okay, अभी भी small है. Not now. Okay, चलो ठीक है. Okay, so I'm waiting for more participants to join. Okay. Anyways, let's start. So in the previous lecture, we reached till the energy concept. So guys, do you know about the kinetic energy concept? Okay, kinetic energy की value होती है half m v square, isn't it? This is the value of kinetic energy, and we know about this from so many days. Like I guess first time we studied this in the ninth standard, maybe. So kinetic energy is half mv square. Now how can we find a relationship between the kinetic energy of electron and the radius of the orbit? Okay, let's try to find out that. So we know that kz e square, एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, kz e square divided by kz e square divided by r square. This is the electrostatic force which is balanced by the circular force, circular motion वाला force. My screen is lagging. वाईफाई तो परफेक्ट लग रहा है. ओके, is it still lagging guys? कोमल, उस पे क्यों जा रही है तू? वो नहीं है अपने सिलेबस में. हाँ, लग रहा है कोमल थोड़ा. ओके, एनीवेज, लेट्स प्रोसीड. सो ये इक्वेशन हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में. गाइज, इस इक्वेशन से हमें क्या mv स्क्वायर की वैल्यू पता चल सकती है? r से r कैंसिल हो गया, तो mv स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? mv स्क्वायर का वैल्यू हुआ k z e square divided by r. Put it in the kinetic energy equation, and hence your kinetic energy becomes kz e square divided by r. और एक 2 भी है, तो ये I'm writing it as 2r. Is that clear? Kinetic energy clear है सबको? The text is discontinuous again. I don't think so. अभी तो कंटिन्यू दिख रहा है. Okay. So guys, what is the concept of potential energy? We studied that in electrostatic. What is potential energy? Potential energy क्या होता है? आपको पता है K Q1 into Q2 divided by R is your potential energy formula, right? So your electron is revolving around a nucleus. Charge on the nucleus is Ze, where Z is the atomic number, and electron is revolving around a nucleus in a circular orbit. So these are the electrons. Okay. So now this is a single electronic species, so I am not writing the other electron. So ये इलेक्ट्रॉन है. इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K, जो कि एक कांस्टेंट है. एक चार्ज E है और दूसरा चार्ज Ze है, डिवाइडेड बाई R. एक चार्ज E मतलब निगेटिव ही है, तो आई एम राइटिंग माइनस ओवर हियर. So minus k Ze square divided by R. This is your potential energy. Okay, using the formula of electrostatic, we calculated the value of potential energy as minus k Z square divided by R. Okay, so total energy क्या होगा? It is nothing but addition of kinetic energy with potential energy.
and ultimately you'll get that as minus k z e squared divided by 2r. ये -1 है और ये +1/2 है, -1 में +1/2 करोगे तो -1/2 मिलेगा. So this is your total energy. Okay guys, so can you write total energy is nothing but mod of total energy, that is positive value of total energy, can be written as positive value of kinetic energy. Can you write that? Okay, so can you compare it with potential also? Potential का वैल्यू के डबल बोल सकता हूं मैं. काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी नॉट डबल, इट्स हाफ ऑफ पोटेंशियल का वैल्यू. सो पोटेंशियल के वैल्यू का हाफ. बोलो, बोल सकते हैं? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं मैं आपसे. स्पेशली एडवांस के बच्चे आंसर करेंगे. मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है? दैट इज द क्वेश्चन. यस, करती है. तो बताओ, ये जो हमने ये लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ये कहाँ पे जीरो है? टेल मी. ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिया इंफिनिटी पे, क्या ये जरूरी है कि मैं इंफिनिटी पे ही हमेशा जीरो लूं? नो, मैं कहीं पे भी जीरो ले सकता हूं. तो ये इक्वेशंस कब वैलिड होंगे? ये जो इक्वेशंस आपने लिखे हैं, ये कब वैलिड होंगे? दे विल बी वैलिड ओनली इफ you consider potential energy at infinity to be zero. Okay, why I am telling this to advanced students? Because mainly CET और नीट के बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता है पेपर. जेई वालों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मेरी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में जीरो हुई हाइड्रोजन के, तो बताओ पांचवें ऑर्बिट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड इन द जेई मेंस और एडवांस लेवल एग्जामिनेशन. बट या नीट एंड सीईटी के बच्चों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है. ओके, विल डू द क्वेश्चन हियर, so don't worry about that. We'll do one question in today's lecture only. Understood beta? Guys, start writing. Start writing beta. Vaishnavi, I just said the potential energy is a reference frame dependent quantity. You can consider it zero anywhere, anywhere. Right now, whatever the formulas we have written on the whiteboard, we have considered that potential energy is zero at infinity. Okay, beta? स्वयं स्वयं का डाउट मैं पढ़ रहा हूँ. स्वयं कोई लॉजिक नहीं होता है ऐसा. देखो, इंफिनिटी पे जीरो मानने से फायदा है. ये जो फॉर्मूला है आपने निकाला के क्यू वन क्यू टू बाय आर, आपने ये माना कि चार्ज बहुत दूर से आप लेके आए हो, और बहुत दूर जब है तो दोनों का इंटरेक्शन नहीं है, तो मानो कि वहां पे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी. इट्स लाइक दैट मैम. सो दैट्स सी, like, remember, you remember the equation, how we land up to this equation k q1 q2 by r? See, we what we did is we just took a charge from infinity to some particular place. स्टेटमेंट सब लोग मांग रहे हैं, लिख देता हूँ. Okay guys, done.
Mannar, 5 or 6 more hours. Okay, chalo. I'm moving ahead, guys. Okay. So, what are the drawbacks? Can you write down the drawbacks? Do you remember the drawbacks? You must have studied that in chemistry. क्या drawbacks होते थे बोर मॉडल के, याद है आपको? Do you remember what are the drawbacks? लिख लो, मेरे साथ साथ लिखना है. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. पहला लिखो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एच लाइक एटम. एच लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है. और क्या ड्रॉबैक है? और क्या ड्रॉबैक है, बताओ. ऑर्बिट इज इलिप्टिकल. ऑर्बिट इज इलिप्टिकल. यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये दिन का, या ये सेकंड स्लाइड है. जीमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया. बहुत सही, ये बिल्कुल सही बोला स्वयं ने. स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस. ओके, ही कुडंट एबल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट. ओके, बाकी सारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना दो लिख लो अभी. इस पे क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आता है, पर केमिस्ट्री में डेफिनेटली आ सकता है ड्रॉबैक पे क्वेश्चन. ठीक है बेटा, डन. चलो आगे बढ़े. Yeah, I can show you the first slide, but there is nothing in the first slide. Okay, it's just a derivation of kinetic energy and the potential energy and the total energy. Okay, can I proceed now? Okay, so guys, now this is the very important part. Okay, ये सबसे important part है अपना, जिसका नाम है एप्लीकेशन. बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है, तो अच्छे से ध्यान देना. एप्लीकेशन की बात अपन कर रहे हैं. सर, यू हैव टॉट एनीथिंग बिफोर द फर्स्ट लाइन? नो अपूर्वा, नथिंग. So Apurva, just focus on this now because earlier whatever was there, it is not very important. इसके पहले का जो भी था वो ठीक है, इतना ज्यादा important नहीं था, पर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important. ओके, Rutuja, I don't know about the Stark effect. I need to read about it. I know about the Zeeman effect, but I don't know about the Stark effect. Stark effect. I need to read about it better. So I cannot comment right now. Okay, so application जो होता है. ओके, एप्लीकेशन में आप सब लोग ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोग के ध्यान भटक जाता है. सब लोग ध्यान दो अभी. चलो, सब लोग ध्यान दो. एप्लीकेशन पार्ट पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं. देखो, सबसे पहले तो बोर मॉडल में दो इक्वेशन हमने पढ़ी है. पहली इक्वेशन है फोर्स वाली, mv² डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू kze² डिवाइडेड बाय r². ये मेरी पहली इक्वेशन है. ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. एंड माय सेकंड इक्वेशन इज एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन. एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल टू nh और 2 पाई. टेक्स्ट कट हो रहा है. मॉर्निंग में वाईफाई को क्या हो जाता है पता नहीं. सो नाउ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज nh अपॉन, देखो इस इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, m और r ये दोनों टर्म को अपोजिट साइड में फेंक दूंगा. ठीक है, 2 पाई m इंटू आर. ओके, समझ में आया? क्या हो जाएगा, 2 पाई m इंटू आर.
नाउ ये जो वेलोसिटी निकाली है आपने वो पहले इक्वेशन में पुट कर दो। पहले तो पहले इक्वेशन में m इंटू वी स्क्वायर है, यहाँ पे v स्क्वायर है, मतलब नीड टू राइट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर इज 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ओके, यहां से एक r ने एक r को काट दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। बोलो समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सब देखो, यहाँ एक आर और यहाँ एक आर है, आर और आर कट गया, इस आर को अपोजिट साइड में लाओ और बाकी सब एक तरफ फेंक दो, तो आर बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, ये एक एम कट गया है यहाँ पे, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। बोलो चमका क्या? ओके, यू हैव डन दिस इन केमिस्ट्री, दैट्स वेरी गुड, रियली गुड। सो अपन बहुत सारी और भी चीजें करेंगे केमिस्ट्री में, तुमने बहुत सारी चीजें नहीं की होगी, मुझे लगता है कि 2-3 फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाए गए होंगे। कोमल, टेक्स्ट कट रहा है, मतलब मे बी हो सकता है नेटवर्क एरर हो मेरे साइड से। एक मिनट, आई ट्राई। ओके, एनीवेज, यहाँ पे देखो आर किस पे डिपेंडेंट है? आर डिपेंडेंट है एन स्क्वायर पे, और किस पे डिपेंडेंट है? जेड पे। ओके, in fact you can keep a value of k also, guys. If you keep a value of k, your 4 and 1 pi will get cancelled. This was pi square, right? So 1 pi will get cancelled and your radius will be something like this, uh, n square, okay, multiplied by h square divided by 4 कट गया, पाई कट गया, तो बस एक पाई बचा, मास बचा, k बचा, नहीं k तो डन हो गया, एक मिनट, जस्ट मिनट, k इज गायब, k हो चुका है अपना। ओके, तो m के बाद क्या आया? सीधा जेड ई स्क्वायर। बोलो क्लियर? अच्छा, एक एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, हाँ एप्सिलॉन हमने मिस कर दिया, या सो देयर विल बी एप्सिलॉन नॉट, सो यू गॉट दिस राइट। So n square h square divided by pi m z e square into epsilon naught. In fact, we can write that r is directly proportional to n square and inversely proportional to z. When we find out the value of other things, what we get is, क्या मिलेगा आपको? Rn is equals to मिल जाएगा nth ऑर्बिट का रेडियस is equals to 0.529 n square by z angstrom. Everybody know this equation? हाँ, या सॉरी माय बैड। ओके, स्टाइलस में प्रॉब्लम होगा, हाँ हो सकता है, हो सकता है मेरा स्टाइलस आएगा आज, ये मेरे फ्रेंड का है बट इट्स नॉट, आईपैड का नहीं है, इसलिए हो सकता है वैसा भी कुछ हो। गाइस देखो, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए, के की वैल्यू हम पुट करेंगे, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो पुट करने के बाद 4 और पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जेड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी रोट दिस इक्वेशन। Now we put the values of all other variable except n and z, because n and z is a variable. Like मतलब ये वैरी करता है, फर्स्ट लेवल के लेवल पे n की वैल्यू 1 है, सेकंड लेवल पे l लेवल पे n की वैल्यू 2 है, so and so on. Okay, so we got a general radius as this. In fact, the if we put the value of n equals to 1 and z equals to 1, we get r which is equals to r naught. इसको कहते हैं बोर रेडियस, पता है क्या आप लोगों को? This is called as Bohr radius. Okay, radius of the first orbit is called as Bohr radius. ठीक है guys? Now guys tell me how it is dependent on the mass. Mass पे कैसा dependent है? Radius is inversely proportional. देखो mass नीचे आ रहा है. So can I write radius is inversely proportional to mass of electron? Yeah, obviously mass of electron is constant, but we can ask a question like this. See Rutuja, why I'm telling you this? Because I may ask a question in which I will say, suppose uh,
सपोज मैंने आप लोगों को लेके गया मार्स पे। कहाँ लेके चला गया मैं आप लोगों को? मार्स पे लेके चला गया। पर मार्स पे इलेक्ट्रॉन का मास जितना यहाँ पे है उतना नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास लेट्स से डबल है। तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि सपोज यू आर गोइंग ऑन अ मार्स वेयर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? वहां पे क्या होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? पूछ सकता हूँ ना ऐसा क्वेश्चन? पूछ सकता हूँ ना? सो मैं ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करूँ तो मुझे सोचना ना पड़े, मुझे बार बार डिराइव ना करनी पड़े इक्वेशन। तो मैंने अभी लिख दिया आप लोगों को कि रेडियस डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट इज गिविंग यू बेनिफिट इन द एग्जाम। एक सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इफ यू रिमेंबर दैट। ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर यू हैव टू डू एवरीथिंग अगेन ऑब्वियसली। यू गॉट इट गाइस, जस्ट राइट इट डाउन। रेडियस वाला कंसेप्ट प्लीज लिख लो। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको तो पूरा फॉर्मूला याद हो चुका है, बहुत बार देख लिया। ओके गुड, स्वयं कह रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ू। तुझा क्या कहती है? या ऋतुजा, दैट्स पॉसिबल। या दैट इज पॉसिबल। बाय द वे बहुत अच्छे से सोच रही हूँ कि अगर मैं वैक्यूम को चेंज करके कुछ और भर दूं तो क्या एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा? यस, चेंज हो जाएगा। सही सोच रही हूँ। ओके गाइस, प्रोसीड करूँ? क्या किसी का राइटिंग अभी भी पेंडिंग है? पक्का हो गया है? Okay. So guys, again we need to use the equations. Like see, radius की इक्वेशन हमने ये निकाली है, इसको हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन में। सी, इसको सब्स्टिट्यूट करना है वेलोसिटी की इक्वेशन में। तो वेलोसिटी क्या है? nh upon 2 pi mr. Okay, let me write it down. Velocity is equals to nh upon 2 pi m into radius. In place of radius now you need to write n square h square epsilon naught divided by में क्या था? डिवाइडेड बाय में था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके, इट वाज पाई एम जेड ई स्क्वायर। आई एम राइटिंग इट डाउन, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर वेलोसिटी इक्वेशन। लेट्स सी व्हाट गेट कैंसिल्ड। पाई ने पाई को मारा, एम ने एम को मारा, और कुछ कटा क्या गाइस? या एन और एच ने एन और एच को मार दिया, तो ऊपर की तरफ चला गया जेड ई स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग जेड ई स्क्वायर ऑन द टॉप, डिवाइडेड बाय में लिख रहा हूं मैं 2, उसके बाद है n h epsilon naught, that's it. So this is your velocity. So velocity is basically proportional to z and inversely proportional to n, and ultimately you'll get an equation v is equals to 2.18 into 10 to the power 6 z divided by n. This is your ultimate equation. Now tell me guys, is velocity dependent on mass of the electron? Yeah, wait up a second. Yep.
Does it depend on the mass of electron? Okay, no, it doesn't depend on the mass of electron. So velocity is independent of mass of electron. Okay, I'd like to ask one thing. क्या आपने केमिस्ट्री में ये डेरिवेशंस भी किए थे क्या? ओके, देन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना ये सब कुछ. चलो, कुछ नई चीज भी सिखाता हूँ फिर. ये तो आपको बोरिंग लग रहा होगा. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. तो यहाँ पे आर हमें रखना है, तो फिर से हम आर उठा के यहाँ रखते हैं. के जेडी स्क्वायर फटाफट कर रहा हूँ मैं बिकॉज ऑलरेडी हो चुका है. टू आर, आर की वैल्यू फिर से हम राइटिंग एट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर. ओके, सो एनीथिंग गेटिंग कैंसल्ड हियर? Nope. So nothing is getting cancelled, right? So just okay, keep it like that. Keep it like that. So it will be k. Z ऊपर चला गया तो z स्क्वायर. ई स्क्वायर ऑलरेडी वहां था तो e की पावर 4 हो गया. इसके साथ पाई और m भी आ गए. डिवाइडेड बाय में हुआ 2n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. k की वैल्यू ऑब्वियसली कैन पुट अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो और रेड्यूस हो जाएगा इक्वेशन. चलो मैं रेड्यूस करता हूँ. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ k, z square e की पावर 4 pi into m divided by 2n square h square epsilon naught. So anything getting cancelled? Yes. Pi is getting cancelled. That's it. Nothing else. So it becomes z square e की power 4 m divided by 8n square h square epsilon naught का whole square. Okay. So from here you'll get a kinetic energy का value as 13.6 z square by n square electron volt. Obviously, potential energy is a double of this, but negative of this, so 27.2 z square by n square electron volt, and the value of total energy is negative of the kinetic energy, that is minus 13.6 z square by n square electron volt. Is that clear to all of you? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन किया. अब ये बात बताओ, क्या एनर्जी डिपेंडेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे? क्या ये डिपेंडेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे? यस और नो? ए डिपेंडेंट है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो भाई, ये चीजें तो आपने पहले पढ़ ली है, कुछ नया पढ़ा जाए. अब इतना आप फटाफट छाप लो, फिर कुछ नई चीजें पढ़ते हैं. ठीक है, चलो फटाफट छापो. Nakshatra, just keep that in mind. Keep only electron volt wala in mind. Okay, it will be used most of the time. Okay, Komal. Yeah, guys, done writing. Okay, कोई पेंडिंग नहीं है ना? Okay, Dhruv, I'm waiting for 1 minute.
Okay, Nakshatra, please write it. Yeah. Dhruv, tell me now. Are you done with the writing? Great. So I'm moving for the next slide now. So it's a question. पहले तो एक question करते हैं. Let's consider a hypothetical planet. Where mass of electron is 4 times mass of electron on the Earth. Calculate radius of fourth orbit, kinetic energy of the fourth orbit, total energy of the fourth orbit, velocity in the fourth orbit for hydrogen atom on that planet. Can you do that? So I hope you understood the meaning of that dependency of mass. है ना, मास की डिपेंडेंसी का मीनिंग अब तुम इसको पढ़ के समझ गए होंगे, है ना. ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड आपका लक अगर अच्छा हो तो इस साल के एग्जाम में आपके अटेम्प्ट में किसी तो अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. वेरी गुड बेटा, बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो. वेरी गुड जैन, बहुत बढ़िया जैन. वैल्यू निकालनी है जैन, लेकिन अच्छा, तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किया है क्या? मैं मैग्नेटिज्म का एक हाथ फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ आज के लेक्चर में? ओके चलो ठीक है. ओके चलो. बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक में भी आपने मैग्नेटिज्म काफी देखा होगा वो अपना एचसी वर्मा में. ये टॉपिक को किसी के साथ भी क्लब किया जा सकता है. किया सॉल्व स्वयं. वेरी गुड बेटा. चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब डिस्कस कर रहा हूँ. देखो भाई, रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. सो अर्थ के सरफेस पे फोर्थ ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस था 0.529, n स्क्वायर का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय z का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम में. दिस वाज द रेडियस. As you know that radius is inversely proportional to the mass of electron, I can say Rn dash upon Rn, that is on the earth, is equals to Me on the earth divided by Me dash. So Me dash is found out to be how much? Me dash is 4 times the mass of ये, तो ये 1/4 times Rn हो जाएगा. So हमारा आंसर होगा रेडियस का 1/4 करेंगे इसको तो बस बचेगा 0.529 into 4. You got this answer, guys? Similarly, energy will be total energy. I'm writing only minus 13.6 multiplied by energy की बात करें अपन तो energy proportional to mass थी, तो यहाँ पे multiplied by 1/4 आएगा बराबर. और velocity of the nth orbit होगा 2.18 into 10 power 6. That's it, meter per second. No, no.
क्या था, वेलोसिटी इज 2.18 इंटू 10 पावर 6 जेड बाय एन, तो एन की वैल्यू 4 थी तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। बोलो यही आया आंसर। और यहाँ पे भी एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये तो बराबर है 60, 16 था तो 4, या दिस वन इज करेक्ट ओनली। ओके, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला था तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर की वैल्यू 16 है। इस 16 को आपने क्या किया, ओके, इस 16 को, यू गॉट इट राइट, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो आपने क्या किया, ये जो 16 है, मतलब वही सेम रिलेशन यूज किया रेडियस के जैसा, तो आपने लिखा ई एन डैश इज इक्वल टू ई ऑफ nth ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय एम ई डैश अपॉन एम ई डैश अपॉन एम ई, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो इसका 4 टाइम्स करोगे तो बस नीचे 4 का फैक्टर बचेगा। बोलो समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? पक्का सबको समझा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, आई एम मूविंग अहेड। एनीबॉडी वांट टू राइट एनीथिंग? सबने लिख लिया ना ये? इनफैक्ट काफी बच्चों को तो आ ही गया होगा। 1 मिनट है ना, ओके ठीक है फाइन। यहाँ याद रखना मैंने फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछा था, ठीक है? डन। चल, अब कुछ चीजें ऐसी जो आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी थी, लेट्स डिस्कस देम। देखो गाइस, ये है आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सबसे पहले तो बताओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन का कुछ टाइम पीरियड है? कैसे निकाला जाएगा टाइम पीरियड? टाइम पीरियड निकाला जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू circumference, that is 2 pi r divided by velocity. So can I say time period is directly proportional to radius and inversely proportional to velocity? बराबर। अब आपकी रेडियस है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, आपकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड डिवाइडेड बाय एन है। इसका मतलब आपका टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर बाय वी। ओके, आर बाय वी मतलब एन स्क्वायर बाय जेड डिवाइडेड बाय जेड डिवाइडेड बाय एन, बराबर। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड की प्रोबेबिलिटी किससे आ गई, एन क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, competition point of view, this is a very important thing. You should know that ki time period is directly proportional to n cube and inversely proportional to z square. Sorry, it's z square. ये भी आपने कर लिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत मस्त। तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो कैन आई राइट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। चलो, अच्छा, क्या करंट की भी बात हमने डिस्कस करी है केमिस्ट्री में? नो। तो करंट, क्या ये घूम रहा है तो करंट प्रोड्यूस करेगा? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज हमारे पास ई है, टाइम पीरियड हमारा कितना है भाई, 2 πr/v है। तो सिंपली, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस इज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। कैन आई से करंट इज अ चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इज ई, फ्रीक्वेंसी इज एफ। सो कैन आई से करंट की प्रोपोर्शनलिटी सेम एज फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी? बोलो, ये नई चीज है आपके लिए?
कुछ तो नया पढ़ाना पड़ेगा। ये तो बोलोगे क्या सर, ये तो पढ़ चुके हो। करंट कैसे होगा, वो एक ही एटम में घूम, हाँ घूम रहा है ना, तो घूमने से करंट आएगा भाई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत कम होगा लेकिन आएगा। अरे यार मैंने लिखने में, सॉरी गाइस, ना यहाँ पे ना लिखने पे गड़बड़ हो गई है मेरी। सॉरी सॉरी। सो इसका उल्टा लिखना है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। यहाँ पे भी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ओके, इज इट फाइन नाउ? प्रिंट एरर बुढ़ापे में हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी समझा, करंट समझा, करंट आपने नया पढ़ा। अब बताओ, क्या ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी? और मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। काफी फेमस फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। पढ़ा है ना, सबको याद आया? ओके, so let's talk about the magnetic field now. Magnetic field is directly proportional to current, inversely proportional to radius. So current is proportional to z square upon n cube, and radius is proportional to what? N square by z. So your magnetic field is proportional to z cube divided by n की power 5. Got it, guys? Okay, great. Okay, और एक चीज कर सकते हो वैसे, क्या आपने मैग्नेटिक मूवमेंट भी पढ़ा है? मैग्नेटिक मूवमेंट करंट इनटू एरिया वेक्टर। बहुत बढ़िया। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज करंट इनटू एरिया वेक्टर। हमें करंट की प्रोपोर्शनलिटी पता है। करंट की प्रोपोर्शनलिटी क्या है? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। आर स्क्वायर बोले तो व्हाट इज आर? आर इज एन स्क्वायर बाय जेड, इसका स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की प्रोपोर्शनलिटी किससे आएगी? देखो, यहाँ एन क्यूब है और यहाँ एन की पावर 4 आएगा तो एन बचेगा। यहाँ जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आ गया? बोलो क्लियर? हाँ नक्षत्र, सबका रिवीजन हो गया, देखो बहुत अच्छा हुआ ना। ओके, समझा। अब कुछ चीजें हमने नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब देखो क्वेश्चन आएगा तो कभी भी सॉल्व करते मत बैठना। सॉल्व नहीं करना है, पहले क्या करना है? रिड्यूस करना है उसको इस इक्वेशंस का यूज करके। उस क्वेश्चन कैसा पूछता है पता है? क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर हेलियम प्लस एटम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, नहीं थर्ड ऑर्बिट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इतनी है, तो बताओ लिथियम का सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिस है उसके फिफ्थ ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड, फिफ्थ ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा? ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? रेशियोज यूज करना है। आता है ना? b1/b2 इज इक्वल टू z1 क्यूब बाय z2 क्यूब इंटू n2 की पावर 5 बाय n1 की पावर 5। ऐसे करना है, नहीं तो पता चला आप पूरा पहले वाले का सॉल्व कर रहे हो फिर दूसरे वाले का सॉल्व कर रहे हो, वैसा मत करना। वो बोर्ड में कर लेना, बोर्ड में वैसे ही करना पड़ता है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग गाइस। कंफ्यूजिंग क्या था सिद्धार्थ इसमें? मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले तो सिद्धार्थ टाइम पीरियड 2 पाई r/v, कितना घूमा, कितने स्पीड से घूमा। टाइम पीरियड निकला तो बेटा फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल, करंट चार्ज अपॉन टाइम पीरियड से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r वाला फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया वाला फॉर्मूला, दैट्स इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं करता है अजिंक्य, वही तो डिस्कशन हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा। जब तक वो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रिलीज नहीं करता है। अजिंक्य पवार। ओके,
अरे अजिंक्य, वो वैसा करेगा तो कोलाइड कर जाएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का एक स्पेशल कैरेक्टर है, न्यूक्लियस में चला जाएगा वैसा होगा तो। बेटा, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट कर ऋतुजा घूमता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये पढ़ा ना मैग्नेटिज्म में आपने आपने मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऋतुजा। या सुमेध वानखेड़े, यू हैव रेज योर हैंड, व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, टेल मी। ओके सुमेध, कैन वी से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, हाँ, ये कहाँ से आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, कितना फोटोन इमिट कर सकता है? अच्छा, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आएगा तब की बात कर रहे हो क्या तुम? करते हैं उस पर डिस्कशन, डिस्कशन ही करना पड़ेगा उस पर, वो तो आएगा आगे चल के, डोंट वरी। हाँ हाँ, यस स्वयं, यस। बताओ इतना हो गया क्या? ऋतुजा, the basic of production of magnetic field is a movement of charge. So wherever you see a movement of charge, you can see a magnetic field. Yes, that will come. Yeah, you're not saying wrong things, but yeah, वो आएगा अभी, don't worry. चलो, now tell me, are you done with your writing? अबे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है नक्षत्र। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है नक्षत्र, वो चार्ज की सारी चीजें कर सकता है जो चार्ज करता है। नो, वेव नेचर का और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है ऋतुजा? वो तो भाग रहा है ना, तो भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। Okay, moving ahead guys. So now see, it's very important. Energy distribution for H atom and H like atoms. Okay, so energy distribution for H atom and H like atom. Okay, so देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लाइन बनाते हैं। ओके, चलो सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, लेवल के नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं। इस लेवल को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू n इक्वल टू 1 स्टेट। This is called as first excited state, or it is equals to n equals to 2 level. This is called as n equals to 3 level, or it is also called as second excited state. Second excited मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से यहां तक पहुंचा तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। दिस इज कॉल्ड n equals to 4 level or third excited state. There are other names also. This is called as k, लाइमन बालमर आएगा रे बाबा, अभी नहीं, रुक जाओ। k
एल, लाइमन पाल्मर बाद में आएगा बेटा। एम और एन, सबसे पहले तो एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा हूं। आपको फॉर्मूला सबके पता है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इन फैक्ट you know about the total energy -13.6 z square by n square electron volt. Okay, so I'm writing this for hydrogen atom for different levels. First we'll write kinetic, then we'll write potential, then we'll write total energy. Okay, so सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए z स्क्वायर 1 है और ये भी 1 है, तो इट बिकम्स 13.6। फिर जाओगे ऊपर तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12, 4 4 3.4, राइट? एम आई करेक्ट? फिर हो जाएगा 1.51, फिर हो जाएगा 0.85। ओके, ये आपको याद होने चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ उसी का निगेटिव लिख दो, 13.6 -3.4 -1.51 -0.85। इसका डबल करो, 27.2 निगेटिव में, 6.8 निगेटिव में, 1.5 का डबल इज 3.02 इन फैक्ट निगेटिव में, 0.85 का डबल इज 170। बोलो क्लियर? So this is for a hydrogen atom. So when you go for a hydrogen like atom, what will happen? H के तरह जो एटम होंगे, बात बिल्कुल सेम रहेगी, बस आपको क्या करना है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। ओके, मतलब यहाँ पे आपने लिखा 13.6 था तो आप 13.6 जेड स्क्वायर कर दो, यहाँ -27.2 जेड स्क्वायर कर दो। You can start writing now. Hope you understood this. You can start writing. This is very important slide. You need to remember this. If you remember these things, the question will be solved more easily. आपको टेंशन नहीं रहेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड करने निकालो ना, दिख रहा है ना आपको, थर्ड एक्साइटेड में लिखा है काइनेटिक एनर्जी 0.85 जेड स्क्वायर एंड 0.85।
Yeah, write it down, guys. पॉइंट 85 Z, अरे जो उधर लिखा है लेफ्ट में उसी को Z² से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ तो नहीं करना है आपको। बताया तो सही, जो आपने इधर लेफ्ट में वही लेफ्ट वाला याद करो। एच लाइक आया तो Z² से मल्टीप्लाई करो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें। सबका हो गया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सबका हो गया ना? अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है, कंसीडर zero potential energy in the ground state of hydrogen atom and calculate K, P, T for n equals to 1, 2 and 3 for each atom. क्वेश्चन समझा? यस नक्षत्र। वेटिंग गाइस। ए नो, रॉन्ग आंसर अक्षय। करो डिस्कस। यार इनफैक्ट मैंने ना गैप्स भी बताने चाहिए थे, गैप्स भी आपको याद रखने चाहिए, ठीक है? आई टेल यू गैप्स आल्सो, ओके? तो प्रीवियस स्लाइड में तुम गैप्स ना ऐड कर देना। बहुत बढ़िया स्वयं, सही सोच रहा है, सही सोच रहा है बेटा। चलो करो डिस्कस। हाँ अक्षय। ना, चिन्मय ना। नो। मैं डिस्कस करूंगा, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
ओके गाइस, नाउ आई एम डिस्कसिंग। काफी बच्चों के आंसर्स मिल गए मुझे। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो ये समझो कि ये ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, 1 2 3, बस इतना ही पूछा ना उसने। तो सबसे पहले तो इस स्टेट में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं बदलेगी। वो कितनी थी यहाँ पे? 13.6, वो 13.6 है। यहाँ पे थी 3.4, वो 3.4 है। यहाँ पे कितनी थी? 1.51, वो 1.51 है। क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट मानने से वेलोसिटी बदल जाएगी? नो। तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी? नो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन द सेम। गाइस एनीवेज, प्रीवियस स्लाइड में ना आप एक चीज और ऐड कर लेना। ये जो गैप होता है ना, ये गैप भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना? ये जो गैप होता है, यहाँ पे टोटल गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये जो सेकंड गैप होता है ये 12.1 होता है। और ये जो थर्ड गैप होता है ये 12.85 होता है। तो गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी का गैप है ये। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी गैप। ओके, सो एनीवेज, so just write this gap in the previous slide only. Okay, now let's talk about the potential energy. So they ask you to take it 0 here. So what is your total energy? Total energy will be 13.6. From here to here the gap is 10.2 ka. तो add 10.2 to it, it will be 23.8। तो ये 23.8 होना ही चाहिए, टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे 12.1 का गैप है, ऐड करो 12.1, इट विल बी 25.7। इज दैट क्लियर? So now you got the value of kinetic as 3.4, you got the value of total as 23.8, that means obviously this will be 20.4. You got it, guys? You got a value of total energy as 25.7, this is 1.5, just subtract that। 1.5 subtract करो, 5 1 को मैं 5 मान रहा हूँ, 1.5 subtract करेंगे तो क्या हो जाएगा? It will be 24.2। Is that clear? So your kinetic remains same, total energy gap remains same, and that's how you calculate the potential energy at different level. You got it, guys? हाँ, साइन बदल गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन बदल गया पर गैप तो उतना ही होना चाहिए ना। यहाँ जितना था उस, यहाँ से यहाँ उड़ के जाना है उसको, तो 10.2 ही चाहिए होगा, ऐड करना पड़ेगा। लास्ट गैप इज 12.85 गाइस। थर्ड गैप, ये जो गैप है लिख लेना, ये गैप आपको याद कर रहे हैं। 12.85 फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक के लिए 12.85 जेड स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 12.85। एक बार चेक कर लेना, लेकिन मेरे को याद सही तो है ना? या 85 ही होगा। 13.6 वैसे मैं अगर 85 निकाल दूं तो 85 मतलब 60 यहाँ से चले गए, और वहां से कितने चले गए? 25। एक मिनट, 60 यहाँ से, और वहां से कितना चला जाएगा? 25। 12.75 होगा गाइस, गाइस, इजंट इट? 75, 12.75। गलत याद था। 10.2, 12.1, 12.75, ठीक है। ए बाबा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा अपूर्वा, चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। यहाँ जीरो माना तो डेफिनेटली चेंज हुआ है ना। इंफिनिटी पे जीरो था, तब यहाँ जीरो आया, तो डेफिनेटली हर लेवल पे डिफरेंट होगा। काइनेटिक नहीं बदलेगा बेटा, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी अपूर्वा, समझा क्या? चल, लेट मी नो इफ यू आर डन, आई विल प्रोसीड। डन डन, सबका हो गया? समझ में आया क्या? कोमल, ऋतुजा, समझ में आ रहा है ना? श्रिया को नहीं समझा। श्रिया, मुझे एक क्वेश्चन बता, एक क्वेश्चन का आंसर दे कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी इंफिनिटी के बदले ग्राउंड स्टेट में जीरो मानी, क्या उसका कोई इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे होगा? तो ये तो तेरे को कॉलम पूरा क्लियर होना चाहिए। अब मुझे बता, उसने ये जीरो दिया तो क्या तूने ये निकाल लिया 13.6 पॉजिटिव है? अब ये बता, तेरे जीरो मानने से जो गैप था, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर जाना था, उसमें कुछ गैप था, क्या वो गैप चेंज हुआ?
तेरे जीरो कहीं और मानने से क्या इलेक्ट्रॉन को जितना गैप चाहिए था वो गैप चेंज हुआ? खत्म श्रिया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, कैन आई प्रोसीड नाउ? सबका राइटिंग हो चुका है क्या? आगे बढ़ू? ऋतुजा, you got it now? अरे it is positive because 13.6 plus 0 is 13.6. It is because you assume potential electricity to be zero at the ground state. That's why it becomes positive. There is no other logic in that. So हम क्या करें? 24.18। कौन सा वाला बोल रहे तू? अच्छा ये एग्जैक्ट तू गैप, हाँ ठीक है ना, वो तो अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। Okay, guys. Now let's talk about the absorption and emission spectrum. Okay, I'm talking about absorption and emission spectrum. Okay. अब देखो आपके पास एक एलिमेंट है। ओके, लेट्स से यू हैव एलिमेंट। सब लोग ध्यान देंगे। सो ये एलिमेंट है आपका, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है। इस पे आप ऑल रेडिएशन इंसर्ट कर रहे हो। ऑल रेडिएशंस आर इंसर्टेड, like all the possible value of energy is available. Now tell me, if you incident all the radiation, what will happen? क्या होगा बताओ? जब आप सारी एनर्जी इस पे इंसिडेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है। वो एनर्जी लेके फर्स्ट स्टेट में जा सकता है, एनर्जी लेके सेकंड स्टेट में जा सकता है, एनर्जी लेके थर्ड स्टेट में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, राइट? यहां से जब बची हुई रेज निकलेगी, क्या वो सारी की सारी रेज, मतलब सारी की सारी रेज निकल सकती है क्या? बोलो। नहीं, कुछ कम निकलेगा। ओके, सो कुछ कम निकलेगा मतलब लेफ्ट ओवर energies, left energies, when they are collected on a photographic plate, we keep a photographic plate here. So if we take them on a photographic plate, we get a absorption spectrum. क्या मिलेगा हमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है, ये जो फोटो मिलती है आपको, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसको समझो, ये है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये वाला गैप कितना है? फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट स्टेट, दिस गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है? अगर मैंने यहाँ पे 10.2 डाला था, तो क्या यहाँ पे मुझे 10.2 मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? क्या वो एनर्जी मुझे मिलेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? नो। तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन होगी? ब्लैक लाइन, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, राइट? सो इट विल शो अ ब्लैक लाइन करस्पॉन्डिंग टू दैट, राइट? सो ये 12.1 था, 12.1 भी गायब है, 12.85 भी गायब है, ऐसे बहुत सारे गायब होंगे एनर्जीज, राइट? सो किसी ने 10.2 खाया, किसी ने 12.1 खाया, किसी ने 12.85 खाया है, बहुत सारे एटम्स थे, राइट? सो उसमें से किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, guys। क्लियर है सबको? तो हमको क्या मिला? जो बचा हुआ कलेक्ट किया हमने, उससे मिला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन रहता कितने देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में? हाउ फॉर हाउ मच टाइम इट विल स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट? इट विल ओनली स्टे for 10 to the power minus 8 seconds in the excited state, and this is called as stability time। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो भाई, ऐसा है, इलेक्ट्रॉन एक बहुत अच्छा इंसान है। वो अगर अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वो उतना ही पैसा घर वालों से मांगता है जितना उसको एग्जैक्ट चाहिए होता है अपने दोस्त के घर जाने के लिए। सो अगर उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब उसके थर्ड फ्रेंड के पास जाना है, तो वो कितना एनर्जी, कितना पैसा लेगा? वो पैसा लेगा 12.85 एग्जैक्ट। उतना पैसा लेके वो थर्ड स्टेट में जाएगा। लेकिन जब वो वापस अपने घर वापस आना चाहता है, तो वो बहुत जल्दी आ जाता है, रहता नहीं है मेहमान बन के हमेशा, कंटिन्यू परमानेंट बन बन के वो वापस आता है अपने घर पे। लेकिन वो वापस आते समय हो सकता है किसी और को विजिट देता हुआ है, यहाँ उतरे, फिर यहाँ से यहाँ उतरे, और फिर यहाँ से यहाँ उतरे, या फिर वो सीधा आ जाए, राइट? जब वो ऐसा आ रहा है, तब क्या वो फिर से एनर्जी को इमिट करता है? जब वो वापस आ रहा है, क्या वो फिर से एनर्जी को इमिट करता है? यस।
तो ये जो इमिटेड एनर्जी है जो उसने इमिट की, अगर इसको मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया तो फिर मुझे मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रम। यू गॉट इट गाइस? इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर है आपको? बोलो। अगर मैंने एलिमेंट पे बहुत सारी रेडिएशंस डाली तो उसमें से कुछ रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, और बची हुई रेडिएशन को जब मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट करता हूँ तो मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काफी सारी एनर्जीज मिसिंग होती है। इस मिसिंग एनर्जी कहाँ गई है? मिसिंग एनर्जी, दिस मिसिंग एनर्जीज आर टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, एंड बाय टेकिंग दैट एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वेंट टू द एक्साइटेड स्टेट, but unfortunately it will stay there for very small time, that is called as stability time, and it is of the order of 10 to the power minus 8 nanosecond. So after this time electron will try to come back to the original state or the ground state, but it have a lot of ways for doing this, and it may stay in the middle excited state before coming to the original ground state. So while coming back to the ground state it will emit a different number of photons. Okay, it may emit different number of photons, and when we collect all these photons on a photographic plate we get an emission spectrum. You got it guys? पूरी स्टोरी समझ में आई इसकी एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की? बोलो। डबल ले लेता है सैन तू। न्यूक्लियस का फोर्स से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में कुछ, एक मिनट ना अजिंक्य। ना देख अजिंक्य, डेफिनेटली फोर्स चेंज होगा इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, तो इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी पे अजिंक्य। प्रैक्टिकली बेटा बड़ा खतरनाक सेटअप होता है, आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझा क्या ऋतुजा? नो नो नो, या सी, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं कि जो तुरंत आ रही है रेडिएशन उनको डिटेक्ट अलग तरीके से किया जाता है, तो थोड़ी देर बाद आ रही है उनको अलग तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि हाउ इट इज मेड, या इट इज पॉसिबल, दे हैव मेड सच इंस्ट्रूमेंट्स ओके वेयर दे कैन डिटेक्ट द टाइम। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर नाउ। Nakshatra, it is fixed for a fixed element. All the possibilities will be the nakshatra because there are infinite number of atoms available. The time required to jump from 1 to 6, 1 to 6 and 1 to 3 is different, but it will stay there for same amount of time. Akshay.
No, not at all, Rutuja. I think Rutuja, you should go for ISC. तुम सोचते अच्छा हो, सोचते हो मतलब सोचना जरूरी होता है। तो आईएससी में जाओगे तो साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आईआईटीज में यू डू इंजीनियरिंग, you find ways to reduce the work. Okay, chalo, can we proceed now? Okay, I'm proceeding guys, moving on to the next slide. Guys मुझे बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1, all radiations, all energies which are missing on absorption spectrum, which are missing on absorption spectrum, आपको बताना है सही है कि गलत है ये स्टेटमेंट, are available on emission spectrum. सही है कि गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो जो भी रेडिएशन यहां में से वहां मिले। अब स्टेटमेंट 2 है, ध्यान देना, स्टेटमेंट 2, all radiations available on emission spectrum are missing from absorption spectrum। जो भी वहां मिला है वो यहाँ मिस था। नो, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स से वी हैव 3 लेवल्स। ओके, सो मिस कौन सी हुई? देखो, जाते समय ये मिस हुई 10.2 की और ये मिस हुई। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है ना, किसी आइटम में ग्राउंड स्टेट में, यहाँ ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में गया, किसी आइटम में ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में गया, लेकिन वापस आते समय पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आया, एक यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या ये वाला मिस हुआ था क्या? ये मिस हुआ था क्या? नहीं मिस हुआ था, लेकिन मिला। मिस नहीं हुआ था तो भी मिला, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बिल्कुल एक्स्ट्रा भी मिलती है तो सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि वहां मिस थी तो यहाँ मिली, एक्स्ट्रा भी कुछ मिलती है। ओके, समझा सबको? कंसेप्ट क्लियर है सबको? अपूर्वा देखो बेटा, जब तुम ग्राउंड स्टेट से किसी के घर पे जाते हो, तो मान लो तुम्हें किसी दोस्त के घर जाने के लिए घर वालों ने 100 रुपए दे दिए, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर भी है, उसको भी 100 रुपए दे दिए। सो तुम किसी फ्रेंड के यहाँ पे गई, 100 रुपए यूज किए तुमने, तुम्हारी सिस्टर ने कुछ रुपए यूज किए, 100 नहीं, उसको कम दिए, लेट से 50 दिए, उसने 50 यूज किए। अब तुमने जाते समय स्पेंड किया था 100 और 50, तुमने 100 किया, तुम्हारी सिस्टर ने 50 किया, लेकिन वापस आते समय तुमने ये सोचा कि क्यों ना हम किसी और फ्रेंड के घर पे जाते हुए घर पे किसी फ्रेंड के घर जाए और फिर अपने घर जाए। तो आते समय स्पेंड करते समय तुमने डायरेक्टली 100 नहीं स्पेंड किया, तुमने 20 स्पेंड किया, फिर 30 स्पेंड किया, फिर 50 स्पेंड किया। समझा क्या? तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत है ना, तुम डायरेक्टली 20 30 50 ऐसे स्पेंड कर सकती हो, या फिर डायरेक्टली 100 स्पेंड करके अपने घर जा सकती हो, राइट? तो आते समय तुम एक्स्ट्रा चीजें कर रही हो, राइट? एक्स्ट्रा रेडिएशंस भी मिल रही है तुम्हें। इज दैट क्लियर नाउ? ओके गाइस, डन राइटिंग दिस?
ओके, लेट मी प्रोसीड. सो गाइज, एक क्वेश्चन है आपके लिए. Let's say this is n equals to 1, this is 2, this is 3, 4. Electron is in the state. How many different photons are observed in emission spectrum? How many different photons are available in emission spectrum? Very good, beta. Correct answer है स्वयं. अजिंक्य करेक्ट आंसर है. कृष्णा करेक्ट आंसर है. बाकी सबने जिन्होंने दिया वो गलत है. यश, अक्षय, ऋतुजा, इट्स रॉन्ग. वेरी गुड श्रेया, इट्स करेक्ट आंसर. डिफरेंट फोटोन ही इज आस्किंग, कितने नए फोटोन मिले, है ना. डिफरेंट करने के बहुत सारे तरीके देख. एक तो तरीका है तुम डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पे जंप करो, एक तरीका. दूसरा है यहाँ जंप करो फिर वापस यहाँ आ जाओ. तीसरा है यहाँ जंप करके यहाँ जंप करके फिर ऐसे जंप करो, फिर यहाँ जंप करके ऐसे जंप करो. ओके, अब देखो गिनते हैं. ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ. इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डिफरेंट नहीं है, ये सेम है. इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, तो इसको नहीं करेंगे कैलकुलेट. इसको कर सकते हैं. तो मेजर करो. 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट वेज. इसको करने का मैथमेटिकल अप्रोच भी है. मैथमेटिकल अप्रोच है NC2. जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको ये पता है NC2 क्या होता है. सो NC2 इज एक्चुअली n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2. सो आप फोर्थ लेवल से आ रहे हो तो आपका आंसर होगा 4C2, है ना. तो 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज डायरेक्टली गिव यू 6. इट्स अ कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये आपने पढ़ा होगा. समझा क्या बेटा? या एक्चुअली इट्स अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. बट जिसको ये नहीं समझ में आया कॉम्बिनेशन, वो ऐसे डिफरेंट फोटोन मेजर कर सकता है. बोलो समझा क्या सबको? या इट्स एप्लीकेबल व्हाइल रिटर्निंग. यस. एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? या यस, रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट. अगर अगर आप ग्राउंड स्टेट में नहीं रिटर्न कर रहे हो, मान लो, देखो स्वयं, आई टेल यू द वे. अगर आप ग्राउंड स्टेट में नहीं रिटर्न कर रहे हो, लेट्स से आप N2 स्टेट से N1 स्टेट में रिटर्न कर रहे हो, तो आपको करना क्या पता है? तुझे किसने पूछा? कुछ भी बताती है ये. क्या बोल रहा था मैं? हाँ. सो N1 N2 ये 3 लेवल है. सो बेटा क्या करना है, कोई भी रैंडम जो लेवल है, लेवल गिननी है. मतलब ये 1, ये 2, ये 3, तो डायरेक्टली 3C2 करना है. समझा क्या मतलब? आई मीन टू से कि लेट्स से आप गिर 6th लेवल से लेट्स से 4th पे आ रहे हो बेटा. सो 6 से 4th पे आ रहे हो तो आपको मेजर करना है कि कितनी लेवल से इनके बीच में, बस. दैट्स इट. सो जस्ट नंबरिंग चेंज हुआ आपका, बाकी कुछ नहीं हुआ. ठीक है स्वयं? ठीक है, चलो. सो गाइज आज के लिए इतना ही रख देते हैं. अगले लेक्चर में मुझे क्या याद दिलाओगे पता है? रेडबर्ग इक्वेशन. रेडबर्ग इक्वेशन याद दिलाना. ठीक है, वहां से शुरू करेंगे अपन. रेडबर्ग इक्वेशन से शुरू करेंगे. और क्या कुछ पूछना है? वो दो क्या प्रेजेंट करता है? अरे दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है ना. ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स ओनली. अक्षय ऐसा क्यों होता है? मतलब लाइक
See here, it's very nanoseconds, right? So you cannot actually say that these are different timings. Okay. Okay, beta. Yeah, Yashasvi Patil, tell me. Anything else you want to ask? Okay. Chalo then. That's it for today. Bye bye, guys. Take care. See you in the next class.